ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಯೇಸು ರಾಜ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವೋ, ಯೇಸು ರಾಜ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವೋ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೀನರಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳಿರಿ, ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೀನರಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳಿರಿ, ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚಳವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚಳವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ, ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಕರುಣಮಯನಾದ ಯೇಸುವು ನುಡಿದ, ಕರುಣಮಯನಾದ ಯೇಸುವು ನುಡಿದ, ತನ್ನಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗನುಮೋದಿಸಿ. ಕರುಣಮಯನಾದ ಯೇಸುವು ನುಡಿದ, ತನ್ನಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗನುಮೋದಿಸಿ. ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಅಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಅಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಪುರದ್ವಾರದಿ, ಪರಲೋಕ ದ್ವಾರದ ಪುರದ್ವಾರದಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿರಿ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಯದ ಗೀತವ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿರಿ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಯ ಗೀತವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಎಂದು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಎಂದು ನಿರಂತರ ಹಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಿರಂತರ ಹಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲಿರುವ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸಸ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮರಪ್ಪನೂರು ಅವರು ಈ ದಿನ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಡೆಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೈವ ಸಂದೇಶ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಡಿಸಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯಾಗಲಿ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ದೊರಕುವಂತೆಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಡೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। आज का दिन संडे स्कूल डे सेलिब्रेट करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें अनुग्रह कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर ये पूरे हफ्ते भर में संभाल कर आज का नया दिन में, सब्बत दिन में प्रभु जी आपने आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना में लगे रहने के लिए अनुग्रह कृपा आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस आराधना को शुरुआत से लेकर आदि से लेकर अंत तक आप ही चलाएंगे करके विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस संडे स्कूल डे सेलिब्रेट यूट्यूब के माध्यम से चलाने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड, संडे स्कूल के बच्चे ये यूट्यूब के माध्यम से संडे स्कूल डे का आनंद ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे पासबान के, कलीसिया के पासबान के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर अम्मा के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी आपने उन्हें चलाया, अनुग्रह कृपा अपने आशीष से भरा, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय में मैं अपने आप को, हमारे कलीसिया के सभी मेंबर्स को, हमारे पासबान को और हमारे संडे स्कूल के सभी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुंदर कबूल कर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन मैंने लिया है मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 13 to 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। इस वचन के जरिए हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन को सुनेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संडे स्कूल डे में इस वचन को बांटने के लिए अनुग्रह कृपा दिया और एक मौका मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के पासबान पास्टर अय्या को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि वचनों को बांटूं में, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के वचनों को आपके सामने बांटने के लिए मुझे एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस रीति से प्रवेश करना है। हमें एक बालक के समान बनना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बच्चे उसके राज्य में प्रवेश करे, उसके वचनों में और उसके ज्ञान में, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य में आगे बढ़े। परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। इसलिए हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के लिए और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आराधना करने के लिए हम क्या अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं, ताकि वो सही रीति से परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। क्योंकि यही एक समय है संडे स्कूल के बच्चों के लिए कि यही एक एज है, एक यही समय है जो परमेश्वर के ज्ञान को, वचनों को सीखते हैं। संडे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वही एक समय है जो परमेश्वर के वचनों को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से आराधना करना चाहिए परमेश्वर का। ये सब कुछ शुरुआत उनका संडे स्कूल से ही स्टार्ट होता है। इसलिए हम अपने बच्चों को हर पल, हर संडे स्कूल में भेजते हैं और भेजते भी रहेंगे। और मैं उन पेरेंट्स को, उन माता पिताओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को संडे स्कूल में हर संडे भेजते थे। आज हमारे कलीसिया बंद होने के कारण फिर भी हमारा संडे स्कूल व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन चल रहा है। आप लोग उसका आनंद ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने
परमेश्वर कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे बचपन से ही सीखे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को आराधना किस रीति से करना चाहता है। ये परमेश्वर चाहता है कि वो बचपन से ही सीखे बच्चे, ताकि आगे बड़े होकर वो परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सके। इसलिए प्रभु पहले ही वचन में लिखा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर ने बालकों को चुना यहाँ पे, क्योंकि बालक जो रहता है, जब बालक एक बच्चा रहता है ना, उनके मन में किसी भी प्रकार का कड़वाहट या क्रोध, जलन या विरोधपन उनके अंदर नहीं रहता। वो नम्र रहता है, उसका मन शुद्ध रहता है। उसे जैसा सिखाया जाएगा वैसा ही वो सीखेगा। और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन सीखने से ही वो अपना जीवन को एक अच्छा मार्ग में, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने भविष्य को एक उज्जवल भविष्य में लेके जा सकता है परमेश्वर के वचन सीखने के द्वारा। इसलिए प्रभु चाहता है कि बच्चों लोग उनके पास आने दो, उनके वचनों को सुनने दो, उसकी आराधना करना सीखे, प्रार्थना करना सीखे, बचपन से ही परमेश्वर से बातें करना सीखे। बालकों को चुना इसके लिए क्योंकि उनका मन एकदम शुद्ध रहता है। अगर वो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, या फिर कभी कभार उनके बीच में वाद विवाद भी हो जाता है फ्रेंड सर्कल में, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो बातों को भूलकर फिर से अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन होकर फिर से खुशी से आपस में खेलते हैं, क्योंकि उनका मन एक निर्मल है। वो अपने अगर आपस में झगड़े भी हो जाते हैं तो एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने दोस्तों को माफ़ कर देते हैं, ताकि वो फ्रेंड सर्कल में फिर से जुड़ जाए और साथ में खेल सके वो। इसलिए प्रभु इस तरह का मन को प्रभु प्रसन्न होता है, इस तरह का मन से प्रभु क्या होता है, खुश होता है कि वो माफ़ करना सीखता है बचपन से ही, कि अपने दोस्तों को माफ़ करना है, एक दूसरे को सॉरी बोलकर माफ़ करते हैं। तो उसी रीति से प्रभु हमें इस वचन में हमें भी यह आज्ञा देता है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। यदि हमारे मन में किसी की भी प्रति कड़वाहट है, या किसी के प्रति भी विरोधपना है, जलन है, या फिर किसी भी प्रकार का एक बदले की भावना है, तो उन सारी बातों को हमें भूल कर क्या है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि 10 का मार्क 10 उसमें 15 अध्याय में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके राज्य में एक बालक के समान, एक निर्मल मन के समान उसके राज्य में प्रवेश करें। अपने आप को नम्र बनाएं, हम अपने गुनाहों को कबूल करके, अपने गलतियों को कबूल करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यदि हमारा मन में किसी की भी प्रति कड़वाहट है तो उसे कड़वाहट को निकाल कर उनके साथ मेल मिलाप करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक वचन में हम देखते हैं कि अपना भाई एक परमेश्वर के सामने भेंट लेके जाता है, तो परमेश्वर कहता है तू भेंट को चढ़ाने से पहले यदि तेरा मन में अपने भाई के प्रति कोई कड़वाहट है तो उस भेंट को वही छोड़, पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाके तेरा भेंट को मैं स्वीकार करूँगा। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारा मन में किसी भी प्रकार का कड़वाहट रख के हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार का भेंट को हम लोग चढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमारा मन को शुद्ध रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि एफिसियंस चैप्टर 4 26-27 में लिखा है कि तो सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध किसी की भी प्रति नहीं रहना चाहिए। हमें तभी का तभी माफ़ करके सुलह करना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है 10-15 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस बालक के जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करने ना पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है, नम्र बनाना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने मन को शुद्ध कर नम्र रखना, ताकि हमारे भीतर परमेश्वर वास करे। क्योंकि वचन में, क्योंकि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। और मैथ्यू
5 और 3:8 में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन दीन है, नम्र है, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और 8 में लिखा है, मैथ्यू 5:8 में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। तेरे इस वचन के जरिए हमारा मन को शुद्ध करना है। यदि हमें परमेश्वर को देखना है, यदि हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, तो हमारे मन को शुद्ध करना है। एक बालक के समान हमें बनने के लिए परमेश्वर कहता है वचन के जरिए। तो हम अपने आप को नम्र बनाएं, अपने मन को शुद्ध करें, ताकि हम भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि पतरस कहता है, पतरस जब यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अपने भाई के अपराध को कितने बार माफ़ करूं, तभी यीशु मसीह कहता है 7 के 70 गुना तक माफ़ करना सिखाया है परमेश्वर ने हमें। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर के सारे कड़वाहट को निकाल कर, हमारे भाई बंधु हो या फ्रेंड सर्कल हो, किसी भी प्रकार किसी भी लोगों के बीच में हमारे हृदय में कड़वाहट है, तो उन सारे कड़वाहट को दूर करके हमें अपने आप को दीन नम्र बना के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हमें बनना है। और एक वचन में बालकों के विषय में कहना चाहूँगी कि एफिसियंस चैप्टर 6 and 1-2 में लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो करके लिखा है। प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो मतलब ये हमारे कलीसिया के पासवान पास्टर के बारे में दर्शाता है। उनके मुंह से निकला हुआ मैसेज के द्वारा जो वचन वो हमें सिखाते हैं, जो वचन को फॉलो करना हमें सिखाते, उस वचन को हमें सुनना है। उस वचन में ही हमें आज्ञा पालन बने रहना है। ये माता पिता मतलब प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनने का मतलब है हमारे कलीसिया के पासवान जो हमें हर संडे मैसेज देते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस वचन को ग्रहण करके परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन में हमें बने रहना है। इस वचन के द्वारा अभी हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है, क्योंकि वचन जो है 2-धारी तलवार से भी चौका है। वचन जो है हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला है। साम्स 119:105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला है। जो अब अंधकार में भी हम जीते हैं, यदि दुख तकलीफ में है, तो हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके वचनों को पढ़ते हैं, तो वचनों के द्वारा हमें आंसर मिलता है। वचन इतना प्रभावशाली है। जब यीशु मसीह 40 रोजा उपवास करके लौटता है, तो ये शैतान उसका परीक्षा लेता है कि तू भूखा है, पत्थर को रोटी बनने बोल, तो परमेश्वर तेरे बातों को सुनकर क्या पत्थर को रोटी भी बना देगा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कह दे। तो यीशु मसीह से डांट कर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन से भी जीवित रह सकता है। इतना हमारा प्रभावशाली वचन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचन के ज़रिए भी अपने आप को हम जीवित रख सकते हैं। और एक वचन में बालकों के विषय में कहना चाहूँगी कि एफिसियंस 6:2 में लिखा है, अपना माता पिता का आदर करो। अपना माता पिता का आदर करना मीन्स उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना है, उनके हर एक नीड्स को पूरा करना है, उनका ख्याल रखना है हमें। और इन दिनों में लॉकडाउन के समय में मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में सुना है कि कोई भी बच्चे लोग बाहर जाने का जिद नहीं किया है। लॉकडाउन में पूरे 6 मंथ या अभी 9 मंथ, अभी 6 मंथ तो भी कंटिन्यू स्ट्रिक्टली घर में रहने का रूल्स था। बच्चों को, स्पेशली बच्चों को और बुज़ुर्गों को, उनको घर से बाहर निकालने का मना था। फिर इन दिनों में भी बच्चों लोग ने अपने माता पिता का इस वचन के ज़रिए आज्ञा पालन किया होगा, आदर किया होगा कि अपने घरों से बाहर नहीं निकलकर और बाहर की चीज़ नहीं खाकर। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, सुना भी है कि कई बच्चे जिद भी नहीं करते कि मम्मी मुझे बाहर जाना है। कोई बच्चे कितने दिनों से घर में बैठने के कारण बोर हो जाते, तो जिद करने लगते हैं कि हमें बोर हो रहा है, हमें बाहर जाना है, खेलना है गार्डन में, बाहर की चीज़ें खाने हैं, हमें कंटाल आ गया। ऐसे कुछ परेशानी
मैंने नहीं सुना है, अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में मैंने नहीं सुना। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि इस वचन के ज़रिए मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे हो या हमारे कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बच्चे हो, इस वचन के फॉलो किया होगा, ये मेरा विश्वास है। माता पिता का आज्ञा पालन किया है और माता पिता का आदर किया है उन्होंने। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के ज़रिए कार्य किया है हमारे संडे स्कूल के बच्चों के जीवन में, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं हर एक विशेष के अपने संडे स्कूल के माता पिता के लिए मैं कहना चाहूँगी, लिखा है कि एफिसियंस चैप्टर 6 में 6 चैप्टर वर्सेस 4 में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या कहता है इस वचन में? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस मतलब इरिटेशन मत करो उनको, और परमेश्वर का शिक्षा, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमारे बच्चों को हम क्या करते हैं, सबसे पहला पैदा हो गया तो हम बच्चे के बैप्टिज्म करने के लिए चर्च में लेके जाते हैं, डेडिकेट करते हैं। जब भी हम एक प्रॉमिस लेते हैं पास्टर के ज़रिए कि हम अपने बच्चों को प्रभु के मार्गदर्शन में बढ़ाएंगे, तभी वो फॉलो करने के बाद, उतना वचन लेने के बाद कई लोग भूल भी जाते। अपने बच्चे अलग अलग रीति से अपने जीवन को बिताते हैं और माँ बाप को भी वो ख्याल नहीं रहता कि हमने ये वचन लिया है। लेकिन आज मैं ये वचन को ध्यान बोलना चाहूँगी कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रभु में क्या है, उनकी शिक्षा और चेतावनी देते हुए प्रभु में उनका पालन पोषण करना हमें सिखाता है। तो मैं उन पेरेंट्स के उनके हर एक माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को वचनों के ज़रिए चलना सिखाइए। अभी इन दिनों में गरबा, अभी जो नवरात्रि हुआ, जो होली होता है, हिंदू के जो फेस्टिवल होते हैं, अभी जो दिवाली आने वाला, पटाखे जलाने के लिए, और इन दिनों में बच्चे जिद करते हैं कि हमें भी रंग खेलना है, हमें भी गरबा खेलना है, हमें भी पटाखे फोड़ना है। लेकिन ये हमारे क्रिश्चियनिटी का खिलाफ है। हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए और फॉलो नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें वचन को उनके हृदय में बोना ज़रूरी है, ताकि वो समझे सही और गलत को क्या है करके। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटी भी जब 4 साल की थी, करीब 4 या 4.5 साल की थी, तभी वो भी जिद करती थी कि मम्मी मुझे गरबा खेलना जाना है। उनको देखकर हमारे जो बालकनी के बाहर से ही दिखता था कि गरबा खेलने वाला, तो उनको देख के उनका इसका मन करता था कि मैं भी जाके खेलूँ, कि जाऊँ और मैं भी खेलूँ। और उसका एक फ्रेंड भी बन गई थी कि वो उसके फ्रेंड आने के कारण मम्मी मुझे जाना है। तो मैं उससे बोलती थी नहीं हम लोग नहीं खेलना चाहिए, क्रिश्चियन लोग नहीं खेलते हैं और इसमें हमें गॉड पनिश करेगा करके मैं उसे समझाती थी। तो भी वो जिद करने लगी। तो एक दिन मैं बोला ठीक है तू जा। तो वो जाकर आई, थोड़ा खेली, उसको तो आता ही नहीं खेलने का, तभी वो आता था भी नहीं। जाकर आई, सिर्फ जाकर नीचे देख कर आई, और थोड़ी देर के बाद घर में आने के बाद खेलने लगी तो उसका स्लाइडिंग में ना हाथ चला गया। ऐसा हाथ चला गया तो उसका हाथ में पूरा दर्द होने लगा। तो उसको मम्मी की बात याद आ गई कि मम्मी के बात मैंने नहीं माना, मैंने गरबा खेलने गया इसलिए गॉड मुझे पनिश किया। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मैंने गॉड के खिलाफ मैंने नहीं खेलना चाहिए था, मैं खेलने गई तो गॉड ने मुझे पनिश किया ना, ऐसा मुझे पूछने लगी। तो मैंने बोला हाँ ऐसा नहीं है बेटा, तू गॉड से माफ़ी मांग, ताकि गॉड तुझे पनिश नहीं करेगा, तुझे माफ़ कर देगा। परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाता है, परमेश्वर तुझे माफ़ कर देगा करके। तो इस रीति से मैं अपने बच्चों को भी छोटी छोटी बातों को मैं सिखाती हूँ कि क्या सही बात है, क्या गलत बात है, हमें क्रिश्चियनिटी के ज़रिए किस रीति से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है करके। ऐसे ही हमें अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाते रहना है अभी से, ताकि वो आगे जाके गलत रास्ते में ना चले। अभी से हम उनको परमेश्वर की शिक्षा को देते हुए, वचनों की ज्ञान बांटते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है कि परमेश्वर के वचनों में अपने आप को बांध के रख सके, ताकि वो गलत राह में ना चले जाए इन फ्यूचर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी बच्चे ये लॉकडाउन में सुरक्षित है, ये मेरा विश्वास है। और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग संडे स्कूल स्टार्ट किया है। कई बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं है, 1-2 ही बच्चों का रेस्पॉन्स है। हमें पता नहीं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं
रिक्वेस्ट करती हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन जो चल रहा है, सभी बच्चे, अभी तो वेकेशन है, ना ही स्कूल का टेंशन है, ना ही ट्यूशन्स का टेंशन है, तो उन लोग फ्रीली एक समय परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम संडे स्कूल चला रहे हैं, एवरी संडे, ओनली संडे है, आप अपने बच्चों को दिखाकर उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके छोटी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला, ये आराधना को आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए आपने वचन दिया, हमें अपने आप को बालकों की समान बनाकर आपके राज्य में प्रवेश करने की योग्य अपने वचनों को हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय को, अपने दिलो दिमाग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज हम जैसे भी लॉर्ड, वैसे ही हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि तू जैसा चाहता है वैसा तू हमें बना पिता परमेश्वर। ये शरीर तो मट्टी का बना हुआ है पिता परमेश्वर, तू अच्छा कुमार है पिता परमेश्वर, जैसा तू रचना चाहता है वैसा आप हमें रचिए करके मांगते हैं पिता परमेश्वर। संडे स्कूल के सभी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। पढ़ाई में लगने वाला बुद्धि ज्ञान भी प्रदान कीजिए उन्हें, और तेरे वचनों के मार्गदर्शन में बढ़ने के लिए भी उनकी बुद्धि और समझ को खोलने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक के परिवार को, संडे स्कूल के सभी बच्चों के परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया के पासबान, उनके परिवार को, हमारे कलीसिया के कमेटी मेंबर्स को, हमारे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द हमारे कलीसिया खुलने के लिए हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर। निर्जल देश में नदियाँ बहाने वाला, जंगलों में मार्ग निकालने वाला पिता परमेश्वर, अद्भुत पराक्रम करने वाला पिता परमेश्वर, हम अपनी प्रार्थना विनंती आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनर कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೂ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಂದೆ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಹ ತಂದೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೂ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತಂದೆ ನಾವು ತಂದೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಡೆಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ತಂದೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆಯೂ ತಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಏನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದಾಗಿ ದೂತಗಣಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದವರಾಗಿ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ ತಂದೆ. ಅಂಬನಾಥ್ ಕನ್ನಡ ಸಭೆಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ, ನಾವು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ದೈವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರಾಗಿ ತಂದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ನಿನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ತಾಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹಾಸ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಪಾಡೋವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸು ತಂದೆ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕಂತ ನೀನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ತಂದೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ತಂದೆ, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ನರಳತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಬೇಗನೆ ತಂದೆ, ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಂದೆ ಔಷಧ ದೊರಕುವಂತೆಯೂ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ಬೇಗನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ವಿವಾಹ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆಯೂ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ ಐನೋರುಗಳನ್ನು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಷಪ್ ಐನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಅವನವರನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಂದೆ. ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿಯೂ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸು ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಲಿ, ಬಿಷಪ್ ಐನವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯು ತಂದೆ ಮಾದರಿಯ ಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ. ಸಭೆಯು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ.
ನೀನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಸಭೆಯ ಬಿಷಪ್ ಐನವರುಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗಳಿಗೂ ಸರಿ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಲಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ತಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಯ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಗನೆ ತಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂತೆ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ. ರಿನೋವೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವು ಯೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮುಂಬರುವ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸುಲಭಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸುಲಭಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೊರಕತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೊಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೇ ವಾಗಲೇ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.